اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ میرے نہایت ہی قابل احترام طلباء قرآن و معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج عمرہ 29 اکتوبر ہے، اتوار کے دن ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اپنے درس قرآن کا آغاز، ہم نے پچھلی دفعہ بھی سورہ الزمر اس کی آیت نمبر تھی 23، وہاں سے شروع کیا تھا۔ میں چاہتا ہوں دوبارہ اس کو سامنے لایا جائے، اسی آیت مبارکہ سے۔ یہ صفحہ نمبر 590 ہے، 590۔ زمر، اس آیت کو بار بار دہرائیں، آپ کے ذہن میں یہ آیت مبارکہ ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کو ایک، یہ جو بھی سامنے آئے گا، یہ نام بھی عطا فرمایا ہے۔ یہ اسماء قرآنی ہے، اسماء قرآنی بے شمار ہیں، اس میں ایک نام اس آیت میں آیا ہے۔ یہ اللہ کا پتہ تھا کہ انہوں نے احادیث کے نام پر بڑا مواد اکٹھا کرنا ہے، اللہ کے علم میں تھا، اس لیے قرآن کو احسن الحدیث کے نام سے پکارا ہے۔ کوئی حدیث کس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی۔ اس آیت کو نہیں کھولتے جان بوجھ کر، کیونکہ جو من گڑت قصے کہانیاں بنائی ہوئیں، اس کا اس احسن حدیث کے سامنے کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں۔ وہ ادر دین قرآن ہے، قرآن نہیں ہے، وہ من دون القرآن ہے۔ جتنا بھی ان کے پاس غیرہ ہے، من دون القرآن ہے۔ ہم نے دون کی طرف نہیں جانا، یہ منع کیا گیا ہے۔ نہ اللہ کے ذات کے ساتھ شریک کرنا، نہ اللہ کے کلام کے ساتھ کسی اور کلام کو شریک کرنا ہے۔ یہ میں چند باتیں توحید کے طور پر آپ کے اندر راسخ کرنا چاہتا ہوں۔ جو بھی سنے یہ قرآن، فرمایا کہ اللہ نزل احسن الحدیث، یہ احسن الحدیث ہے۔ قرآن احسن الحدیث، سپرلیٹو ڈگری ہے حدیث کی۔ اللہ کی بات سے پر کسی بات ہو ہی نہیں سکتی، جتنا مرضی اس کا کیلیبر ہو، ایون کو رسول بھی کوئی نہ ہو۔ رسول سے بظاہر تو کوئی نہیں انسان ہو سکتا نا، لیکن اللہ تو سب سے بڑھ کر ہے، اللہ خالق ہے، رسول کا ہی خالق اللہ ہے۔ اس کے کلام کے سامنے کوئی ویلیو نہیں، اور نام وہ کرتے ہی ہیں، فالتو بات کرتے ہی نہیں۔ وہی کی وہ روشنی ہے، جتنے بھی انبیاء ہیں وہی کی روشنی میں ہی بات کی ہے، انہوں نے اپنی بات کوئی نہیں کی۔ اپنی بات کرتے کہ تو من دون وہی بن جاتی وہ بات، اور وہ شرک ہے۔ سورہ الکہف کی آیت نمبر 26 کی روح سے وہ شرک ہے، جو مولا کے کلام کے علاوہ جتنی بھی باتیں وہ من گھڑت ہیں۔ صفحہ نمبر 371 دیکھیں، اور اللہ نے منع کیا ہے کہ میرے کلام کے ساتھ شرک نہ کرنا ہے۔ یہ ہے آیت نمبر 26، 361 صفحے پہ آخری سطر دیکھیں، آخری سطر ہے 26 نمبر۔ وَلَا يُشْرِكْ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، وَلَا يُشْرِكْ، نہ شریک کرنا میرے حکم نامے میں۔ یہ حکم نامہ قرآن الحدیث جو ہے، اس الحدیث کے ساتھ کسی ہو اور حدیث کا نہ لانا۔ اور یہ میں آپ کے فجر کی بات بتا رہا ہوں،
جتنی بھی مدارس ہیں یا جو فالو کرتے ہیں حدیث کو، اس کو پوچھو، ان کو پوچھیں ایک بات، یہ حدیث جتنی بھی کہتے ہیں بڑی چھانٹی موری جنہوں نے حدیثیں جمع کی 10 لاکھ سے شروع کی تھی، انہوں نے جمع کرنے والا کرتے 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 وہ 6 پہ آیا، 3 پہ آیا، پھر اس کو میں چھانٹی ماری جو 600 حدیث لکھی گئی، وہ کہتے ہیں ٹھنٹک ہے، ٹھنٹک۔ ان سے صرف ایک سوال کہیں کہ انہوں نے جنہوں نے بھی حدیثیں اکٹھی کی، انہوں نے چیک کس پر کیا تھا اپنی حدیث کو؟ روایات کی کسوٹی پر۔ یہ قرآن کے ساتھ چیک کیا تو پھر صحیح ہے۔ اگر قرآن کسوٹی ہے، قرآن کسوٹی ہے، الحدیث یہ قرآن، کیا اس پر ایک بھی حدیث چیک کی انہوں نے؟ فلان سے پوچھا، فلان سے پوچھا، فلان سے پوچھا، فلان سے پوچھا، یہ ہے معیار ہے؟ تو اس سے پوچھ لیتے ہیں نا تو بات ختم ہو جاتی۔ اس لکھی نہ جاتی۔ ہاں، اس الحدیث سے پوچھتے، آسان الحدیث سے، اس آسان حدیث سے پوچھتے کہ ہمیں حدیث اکٹھی کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے، یہ بتا تھا کہ ولا یشرک فی حکمہ احدا۔ اتنا زیادہ پروپیگنڈا ہزاروں سالوں سے کیا ہے، سارے جتنے مدارس آپ کو ملیں گے پاکستانی یا بغیر، اور حدیث جو انسانوں اکٹھی کی ہیں وہ پڑھاتے ہیں، یہ الحدیث کو نہیں پڑھاتے ہو، اس کا فہم ان کے پاس ہے ہی نہیں۔ قرآن ان کے سلیبس میں ہی نہیں ہے، 8 سالہ کورس ہے مدارس میں، 8 سالہ کورس ہے جو علماء کی ڈگری دیتے ہیں۔ ان کو پوچھو قرآن کتنا پڑھ کے آئے ہو؟ یہ ٹیکسٹیں میرے شامل ہی نہیں نصاب میں، قرآن شامل نہیں ہے، یہ الحدیث شامل نہیں ہے، یہ تو ہماری نصاب کی کتاب ہے، سوال بھی اسی میں آ رہے ہیں اور جواب بھی اسی میں سے لینے ہیں، اللہ نے ان سے نہیں لینے۔ ادر دین قرآن کسی کھاتے میں آئے اللہ دین نہیں رکھنا، یہ اسی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کو الحدیث کے نام سے بھی پکارا کریں تاکہ اس کی پرورشی ہو، ان کا پتہ نہیں چلے احسان حدیث قرآن ہے۔ اس حدیث احسان حدیث کے سامنے کس کی بات ٹھہر سکتی ہے؟ فلانے کی، فلانے اس کی بات ٹھہرے گی؟ خدا کا خوف کرنا چاہیے، جو بات اس کی بات کرتا ہے اس کو روک دیتے ہیں، اس کو پکڑ پہلے، یہ احسن الحدیث کی بات کرتا ہے، یہ رکو قرآن خود کا ہے، میرا قرآن احسن الحدیث ہے، یہ میری بات ہے، اور فرمایا کتاباً متشابہاً مثانی، یہ میری کتاب جو ہے مینی فلوڈڈ ہے، بہت درد بہت اس کے تہیں ہیں مختلف قسم کی، مختلف قسم کی اس کے اندر تہیں لگی ہیں، متشابہ مثانی، مثانی کہتے ہیں مینی فلوڈڈ، ایک چیز کھولو اس کے الٹاتے جاؤ، اس کے اندر مفاہیم کی دنیا اس کے اندر ملے گی، خزانے کھولتے جائیں گے۔ یہ ہے الحدیث۔ الحدیث کو تو پسے پس ڈالا ہوا ہے، اور اللہ نے فرمایا تھا کہ جو بندہ قرآن کے چھوڑے گا وہ میرے مجرم ہے، ملزم نہیں کہا، مجرمین منتقمون، الزام نہیں دیا، ومن ارادہ، جو بھی اراض بٹے گا میری الحدیث سے، احسن الحدیث سے، وہ میرے مجرم ہیں، جرم ہے یہ، اللہ کی کتاب سے کے ساتھ کسی اور کو شامل کرنا جرم ہے۔ تو ہمیں اس لحاظ سے بڑی ہی احتیاط کرنی چاہیے۔ کتابوں متشابہ مثانی، آگے پڑھا ہے، یہ ایسی احسن الحدیث ہے تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، انگریزی میں کہتے ہیں خشیت کا مطلب او حیبت طاری ہو جانا، الیکٹریفائی ہو جانا،
जिसके अंदर जुलूद के अंदर ये जिल्द है जिसके ना लहू कंडे खड़े हो जाना फलाने गल सुनी मेरे थे लहू कंडे खड़े हो गए। ये है आसान अल हदीस। कितने के लहू कंडे खड़े होते हैं और सुन के जो ज़बानी जमा की हैं, ये है जो जला बख्शी है इंसान को, हरारत पैदा कर दी हैबत। आओ ये वो कुरान है, फरमाया सुम्मत तलीनु जुलूदुहुम, वो जो इंसानी अज़ा है जुलूद है वो उसके आगे झुक जाते हैं, वो नरम पड़ जाते हैं। वक़ुलूबुहुम इला ज़िक्रिल्लाह, कल्ब जो है दिल जो है उसके तरफ माइल हो जाते हैं। ज़िक्र कुरान है, अल हदीस की तरफ। अल्लाह ताला की जो ahsan अल हदीस है, जब इंसान जो मोमिन बिल कुरान जो कुरान सुनता है उसके अंदर इलेक्ट्रिफिकेशन आ जाती है, वो इंस्टिगेट हो जाता है, इग्निशन मिलता है कुरान के लिए। इग्निशन जैसे गाड़ी स्टार्ट होती है, कुरान इग्निशन से बढ़कर आगे फरमाया ज़ालिका हुदल्लाह, ये है हुदा, ये कुरान और आसान हदीस। ये आप लफ्ज़ के अच्छी तरह अपने अंदर सेट कर लें ज़ेमन। ये तो कोई दस देता ही नहीं है इसको। आसान हदीस क्या है? ये कुरान है, सुपरलेटिव डिग्री हदीस की। मिन दूनिल कुरान हम नहीं मानते उसको, मिन दूनिल कुरान शिरक है। जिस तरह मिन दूनिल्लाह अल्लाह ने कहा, मिन दूनिल्लाह को नहीं न मानना, अल्लाह के सिवा किसी हस्ती को नहीं मानना। इसी तरह उस कुरान के सिवा किसी को नहीं माना। हमारे ऊपर ईमान लाना फ़र्ज़ नहीं है कुरान के हटकर, कुरान फ़र्ज़ है हमारे ऊपर, वही है इलाही जिसके ऊपर हमें ईमान लाना है, वो कुरान है। वही और देते हैं ज़ालिका हुदल्लाह, ये है हुदा, हुदल्लाह यहदी बिही मन यशा। कोई है जो हुदा लेना चाहे, गाइडेंस लेना चाहे, हिदायत देना चाहे, मन यशा बंदे की तरफ जाता है। वो अंदर पैदा तो करे यसुजू हिदायत देने की। अब सब्जी मंडी फिर रहा है, बकरा मंडी बकरेला करता पे, वो हिदायत मिल जाएगी। वहाँ हिदायत शो होगी तो सही छुरी फिरेगा। वहाँ भी मोमिन चाहिए तब बकरा हलाल आता है। ये मुर्गी वाले, ये मोमिन माम नाम तकबीर का पता ना, गर्दन किधर जा रही मुर्गे के, चलो छुड़िया डब्बे दे विच, ये हलाल है। कोई खुदा खौफ है किसी पास या नहीं है? किसी फील्ड में अल्लाह की जो वाज़ेह हिदायत है कहाँ है? जिस ज़बीह के वक़्त अल्लाह की तस्बीह ना बयान की जाए वो तो ज़बीह हराम है। अल्लाह का नाम लेना उसके ऊपर सही तरीके से, हज़ार लाख जानवर क्या क्या उसका उनका क्या मोमिन है वो? हम तो खा जाते हैं। उसको क्या पता कुरान ने क्या लिखा है एक कसाब को? अब वाला किसी का इल्म होगा, लेकिन मेजॉरिटी आप देखें तो होलिया उनकी बातें जिसने काम आकर तोलना है, छिठे डाल जा रहे हैं, भट्टियाँ डालती जानी 2-2.5 पर किलो देते हैं। तो ये क्या है? सारा निज़ाम पाकिस्तान का उल्टा हो गया, कुरान से दूर है। इस तरह ये देखें अल्लाह तआला है वही मई युद्लिल्लाहु वमा लहु मिन हाद, जिसको अल्लाह गुमराह करार दे दे उसको कोई हिदायत नहीं दे सकता, हो ही नहीं सकता। जो हिदायत देना चाहेगा बिही मई यशा, उसको हिदायत मिल जाएगी। ये मालिक का फरमान है। आसानुल हदीस है ही उसके लिए जो हिदायत लेना चाहेगा, वरना दूसरे के लिए नहीं है। जो गुनवारा रहना चाहता है रहे, अल्लाह का क्या मसला है? जहन्नम बड़ी वसी है इसकी। ये देखें
یہ سورہ یوسف ہے 111 آیت نمبر ہے اور جو یوسف 12 نمبر صورت ہے 111/12 111 آیتیں صفحہ نمبر 308 ہے. کیا بات ہے. ہاں اتنی زبردست اللہ تعالیٰ نے بڑا بے شمار جگہ پہ ہے. قرآن حدیث ہے, قرآن الحدیث ہے, احسن الحدیث ہے. اس کے بعد آنے کے بعد کس حدیث کی ضرورت ہے؟ آج اتی ہے. یہ دیکھیں فرمایا لقد کان فی قصصہم عبرۃ. یہ جو اوپر سارا واقعہ آیا ہے یوسف سلام اللہ علیہ کا, اس صورت کے اندر اس کے متعلق بتایا گیا لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب. یہ جو قصائص اس صورت میں بیان ہوئے ہیں یہ اولو الالباب کے لیے ہیں, صاحبان عقل و دانش. یہ ان کے لیے ہیں. یہ ہمارے جیسے لوگوں کے لیے نہیں ہے. اولو الالباب ایمان کی ہائٹ پر ہے, ایکسٹریم پر ہے, یہ ان کے لیے ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں ان کے لیے بیان فرمائی ہیں. فرمایا ما کان حدیث یفترا. یہ جو الحدیث یا حدیث ہم پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرمایا ہے یہ افطرا نہیں ہے, گھڑی ہوئی باتیں نہیں ہیں, من گڑت نہیں ہیں. کسی بندے نے یہ نہیں یہاں سے سنا, یہاں سے سنا, یہاں سے سنا, رسول سے سنا, ایسے بات نہیں کرتا. یہ فوراً بات کرتا ہے میں نے نازل کیا, میں رسول پر نازل کی, اس رسول نے یہ بیان کیا ہے. واہ, کوئی واسطہ نہیں, کوئی ہے نہیں وایا میری اور جو ہمیں بتائے کہ میں نے اس سے رسول نے یہ آیت بتائی. ایسا میڈیا نہیں ہے. یہ مفتری افطرا نہیں. مفتری کے نا کسی بات کو میں نے نہیں کیا, آپ نے میرا نام جا کے لیں کہ یہ اس نے بتایا, اس کو افطرا کہتے ہیں. یہ جھوٹ من گڑت بات ہوتی ہے. تو اللہ فرمایا ما کان حدیث یفترا. یہ افطرا گھڑی ہوئی بات نہیں ہے. یہ آسان الحدیث گھڑی جا بھی نہیں سکتی ایسا کلام ہے. آج تک چلیں گھڑ کے دکھاؤ, کوئی ہے تو گھڑ کے دکھائے. یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. فرمایا یہ ولیکن تصدیق. دیکھیں کیسی بات کا ہے. ماں کانا حدیث یفترا. یہ کس نے گھڑی ہوئی بات نہیں ہے قرآن, بلکہ یہ کتاب جو ہے ولیکن تصدیق, یہ تو سرٹیفائی کرتی ہے, تصدیق کرتی ہے. کس کی؟ اللہ جی بین یدیہ. جو اس قرآن سے پہلے کتابیں آئیں, صحیفے آئے, وہی آئی, اس کی ویریفیکیشن یہ کتاب کرے گی تو بات آپ نے مانی ہے. جیسے انہوں نے ڈھنڈورا پیٹا ہوتا ہے یہودی کہ مسیح علیہ السلام کی پھانسی لگا دی ہے, سلیب چڑھ گئے. اس نے آپ کو وضاحت کر دی کوئی سلیب چڑھے ہے, نہ قتل ہوئے ماں سارا وہ ماں قتل ہو, نہ وہ سلیب ہوئے نہ وہ قتل ہوئے. اس نے آ کے ویریفائی کیا. یہ ہے تصدیق اس کی. اور بھی بڑے مسائل جو پہلے پھیلے ہوئے تھے یہودی نا, جیسے ہمارے یہاں پھیلے ہوئے ہیں ہزاروں معاملات, اس کے پرکھیں گے, یہ تصدیق کرے گی. ایک ہے اس سے پہلے بھی اللہ جی بین یدیہ, جو پہلے کی کتابیں ہیں اور جو تمہارے ہاتھ میں ہیں. یہ تو جو قرآن کے علاوہ اپنے ہاتھوں میں مضبوطی کے ساتھ
थामी चीज़ें हैं, यदाई के मत हाथ भी होता है, सामने होना, हाथों में है, उसकी तफसीक भी ये करेगा कुरान। ये वेरीफाई करेगा, ये मोहर लगाएगा उस बात के ऊपर, वो तस्दीक शुदा बात होगी, अदरवाइज कोई तस्दीक नहीं है। फरमाया व तफसीर कुल्ली शै, तफसीर कुल्ली शै, ये डिटेल्स बयान करती है, हर चीज़ खोल के बयान करती है। वरहमा वहुदन वरहमा, ये हुदा है, कुरान हुदा है, वरहमा है, ये रहमत है। किसके लिए? लिकौमी युमिनून, ये इनके लिए है जो कौम इस पर ईमान लाएगी, इस पर बस। लिकौमी युमिनून, लिकौमी युमिनून, जो इसके साथ वाबस्ता हो। इसके साथ ये जो मार पड़ रही है ना मुसलमानों को, इसको छोड़ने की वजह से मार पड़ रही है मेरे भाइयों। हम तो वैसे तो इंसान हैं, तकलीफ होती है जब पिटाई देखते रहे हैं बच्चों की, बड़ों की, और ये तो अपनी जगह पे है, लेकिन मार क्यों पड़ रही है? इसको छोड़ा हुआ है, इस किताब को पसे पुष्ट डाला हुआ है। मार पड़ने की और वजह कोई नहीं। कहती है अल्लाह की मदद नहीं आ रही, अल्लाह की मदद क्यों आए? मदद हमारा अल्लाह के साथ क्या रिश्ता है? अल हदीस के होते हुए तुमने दफ्तर भरे हुए, लाखों किताबें इसके पहले है। हमारे पाकिस्तान में इतने मदरसे, वहाँ कुरान की बात नहीं, लाखों का इज्तिमा होते हैं। तो बड़े बड़े कराची हैं, लाहौर हैं, आप देखें कुरान ही है, उन किताबों में चस्का है, अट्रैक्शन बड़ी है, बड़े बड़े लालच दी जाते हैं, ये कर लो, ये कर लो, ये जन्नत। व्हाट्सएप भाई जन्नत ऐसे मिल जाएंगे, जन्नत तो अमाल के बदले में मिलनी है, जन्नत ऐसे में नहीं। और अमाल जो इसके मुताबिक की होंगे, उसके मुताबिक मिलनी है। ये मैंने आपको ये चैप्टर इसलिए शुरू किया है, आपको पता चले अल हदीस क्या है। अल हदीस, अहसन अल हदीस वो कुरान है। इस तरह एक और आज आपके सामने लाता हूँ, ये 7 है सूरह अल आराफ की 7 आयत है। अच्छा नहीं, 7 नंबर सूरत है अल हकाफ, अल आराफ। इसकी आयत नंबर आपको मिलेगी 86 होगी, मैं 186 देखेंगे। 186 आए तब? हाँ, ये सफर नंबर 215 है, 185 215 185। ये देखें। ऐसे बहुत सी हैं, हाँ, ऐसे बहुत सी आयात हैं जिसमें कुरान को हदीस के तौर पर पेश किया गया है। ऐसी बहुत सी हदीसें हैं। 185 सूरह अल आराफ 185 आयत है और सूरत नंबर है 7, 215 ਦੇ ਥੱਲੇ 215 सफ़ा है। नीचे देखें ज़रा, आप इसकी मुनादी करें, इन आयात की मुनादी करें। ये इन्होंने इस अल हदीस को पसे पस डाला हुआ, बताते नहीं। कुरान भी तो कुरान से अल हदीस कह रहा अपने आप को, हदीस नहीं है। एक किसी बंदे का मर्तबा शुदा नहीं है, किसी बंदे ने नहीं इसको जमा किया। फलां से पूछा, वेरीफाई कर तो इसने करना था, किसने इसके ऊपर चेक किया है? बता दे भाई। अल्लाह फरमाए अवला यंजुरू फी मलकुत समावाति वल अर्द। देखा तूने, कभी गौर किया
युनज़र नजर की हाँ नज़र की दराइत को भी मलाकुत समावात अर्द, ये समावात और ज़मीन का जो सिस्टम है कैसे चल रहा है, कभी गौर किया है तुसी? मलाकुत समात वे समावी कुर्रे कैसे भाग रहे हैं, चांद के सूर्य के सितारे के, कभी गौर किया है? ये किसने सिस्टम दिया, किसके कंट्रोल में है, कभी गौर तुम करो। अहकमुल हाकिमीन। तो फिरका परस्ती से निकलती नहीं बाहर, हमारा फिरका नाजी, वो फिरका ओ वह कहते हैं हमारा फिरका नाजी, बाकी सब जवान नहीं। बड़ा सा सर्टिफिकेट तुम्हें मिल गया भाई। फिरका परस्त जो है उसकी सूल के साथ कोई लेन देन नहीं है। कुछ नहीं। अभी आपको हवाला दूंगा, उसका नाता टूट के चुका है 1400 साल पहले से। जो फिरका बंदी करेंगे, इन्नल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम कानू शियआ लस्ता मिनहुम फ़ी शैइन, ऐसा आपका कोई तलक नहीं है। 1400 साल हो गए, 44 साल। ये कहाँ लात हुसैन है अपना रिश्ता तो उस सवार को उस हस्ती के साथ जो कहते हैं हमें सिफारिश करनी है। कौन सी सिफारिश करनी है? बदमाशी की सिफारिश कौन करता है? और अल्लाह को हुजूर में खड़े हैं। वो कहते हैं मैंने इनके रखा इस्तिग़ासा दायर करना है जिसने मेरा कुरान छोड़ा है। कुरान महजूर का है। जी अल्लाह ताला फरमाया चले मैं कल तो वाले जाऊँगा। फरमाया मलाकुत समावात वल अर्द, आगे फरमाया व मा खलक़ल्लाहु मिन शै। क्या बात है। क्या बात। ओहो, ये किसने बनाया? हर चीज़ को कौन पैदा करने वाला है? वो खालिक है, एक ही मालिक, और उसका नाम अल्लाह है। व अन आशा अन यकूना कतीत तारबा अजलहुम, क्या पता अजल आने वाली हो, हमारी मौत का पता है और टाइम आने वाला ही हो, मैं क्या पता अजल का और करीब ही हो सकती, ये बताया जा रहा था। मरिया भी पइया ने, हाँ मुर्दा भी होइया। बोला फिर आगे फरमाया फबी अई हदीस से बाद हुई मिनून, इस हदीस के बाद अब किस पर ईमान लावे? ये हदीस अल हदीस कुरान, किसके पर ईमान लेने की ज़रूरत है? इस हदीस के बाद ये कुरान है। इसलिए जो मौजूदा हमारे ऊपर हालात इस वक्त मुसलमानों पर आए हुए हैं, उनका इस हदीस पर ईमान नहीं है। अगर ईमान होता तो वो तो छोड़ के भागे थे मदीना से, यही यहूद, एक यहूदी नहीं लिया सी। उनकी हैबत से ही भागे थे, कोई हमला नहीं उनके ऊपर हुआ। ये यहूद की बसीयत हुई मदीना के पास इर्द गिर्द कबाइल। जिस वक्त मोमिन की हैबत बैठी ना इस कुरान के ज़रिए, उनके पास सिर्फ कुरान था, कोई हथियार नहीं थे आजकल की तरह। जैसे आजकल जो उस ज़माने भी थे या चंद हथियार होते थे उनके पास, वो दौड़ गए बड़े बड़े कबाइल साथ मदीने के मोमिनीन की जब होती हुई भागे थे। और अब उनका नज़रिया यही है, सदियों से उनकी ये मांग है, सदियों से इस काम में लगे हुए हैं। काश किसी तरीके से हमें वो इलाके दोबारा मिले। उनके वहाँ डैन थे, उनके बड़े बड़े वो जो किले थे वो मसीह के अंदर, वो उनकी ख्वाहिश पूरी हो रही है एक लिहाज से। ये जो फ़लस्तीन का इलाका है, ये तो बहुत बड़ा बैरियर था उनके दरमियान। ये इनको वहाँ होना चाहिए था मुसलमानों को। ये दीवार है इसराइल के दरमियान, अगर दीवार हट गई मिनटों में जाएगा मदीना के, तो मिनटों बंद बंदा हुआ है। ये बंद होता। ये इनको होश नहीं है मुस्लिम क्यादों को कि होना क्या है हमारे अगला साथ। टारगेट ये है। अगला टारगेट उनका ये ही है।
وہ مدینہ کے بستیاں انہوں حاصل کرنی ہیں. شہر انہوں مکے کی بنوایا. ان کا گریٹر اسرائیل کا پلان ہے اور آج کی بات نہیں ہے. یہ ابھی نہیں شروع ہوا. 1.5 سال ہو گئے. وہ کب سے لگے ہوئے ہیں. اور پہلے انہوں نے کیا کیا؟ پہلے انہوں نے یہ جو ہماری ریاستیں ہیں UAE وغیرہ دیگر مسلم کنٹریز، ترکی، ان کے ساتھ انہوں نے اپنے حالات کو کوآرڈینیٹ کرنے کے لیے سفارتی ویسی کھالی ہیں. پتہ ہے آپ کو؟ سفارت خانے کھولیں تاکہ ہم ان کے آنے ساتھ جانے کا راستہ راستہ بہار ہو. اور سعودیہ کے ساتھ ہو رہا تھا ابھی. یہ اس میں کیا ہے حکمت اللہ کی کیا نہیں اس کو پتہ ہے. سعودیہ کے ساتھ یہی کام کرنے جا رہے تھے کہ چلو ان کو ایسے ہی پکڑ لیتے ہیں پیار سے. 15 شہر بنا رہے ہیں ایک پورا پیار سے. لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں کیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے. یہ سمجھتے ہیں حملہ کر دیا انہوں نے، حملہ کر دی. یہ اس کے اپنے پلان ہیں. وہ کیا کرنا چاہتے ہیں ہمیں ہی پتا اس کے پلانوں کا. یہ اتنی بدبخت قوم ہے یہود. اس کے متعلق تو قرآن مجید بھرا پڑا ہے. سورہ البقرہ دیکھیں، میں اس کو چند آیات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اتنی ان کو اللہ نے دی تھی، میں دیتا ہوں، اتنی ان کے فضل و کرم کیا تھا، لیکن اتنی بدبخت قوم ہے یہ. اور اللہ کے رسولوں کا مقابلہ کرتے رہے، ان کو ذبح قتل کرنے تک گئی یہ قوم. اتنی بدبخت قوم ہے. یہ آج میں بتاتا ہوں، نہیں بتاتے ہیں. یہ صفحہ نمبر 9 ہے. 9 ہاں جی، یہ صفحہ نمبر 9 آیت نمبر 40 ہے. یہاں سے ان کا شروع ہوتا ہے. ہم نے کبھی آیت اس طرح پڑھی ہی نہیں نا، نہ پڑھائے گی. یہود کیا ہے؟ یہ ہے ٹھاکران مسلمانوں کے اندر زبردست جاگزین کرنے والا. کس نے بتائی آیتیں؟ یا بنی اسرائیل سے بات شروع ہوئی. آیت نمبر 40، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وأوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وإیایا فارہبون. بنی اسرائیل، یہ یہود، اسرائیل جناب یعقوب ایسا کا لقب ہے. یعقوب ان کی اولاد میں سے یہ آئے آگے. یہ جو قبائل ہیں یہود ان کی اولاد میں سے. فرمایا اے بنی اسرائیل ذرا میری نیندوں کو سامنے لاؤ جب تمہیں وہ گدے نے اتارا تھا، فرعون تمہارے بچوں کو مار رہا تھا اور تم ذیل خوارہ تھے دنیا کے اندر. ہم نے موسیٰ کو کھڑا کیا تمہاری ہیلپ کے لیے. نعمتوں کو سامنے لایا اور ہم نے کیا کیا؟ تمہیں افضل کیا. اللہ کا فرمایا انعمت علیکم، اور وفا کرو، اپنے وعدوں کی پابندی کرو. وأوفی بعہدی اوفی بعہدکم وإیایا فارہبون. یہ چلتی ہیں 120 تک چلے گا. یہ ٹیک ہے، پورا ٹیک ہے. اس میں یہود کے جو تھے نا جران، ان کی ساری ایک ہسٹری بیان کی ہے ان آیات کے اندر. میں نے تو آپ ساتھ یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، اور تم نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا. ہر پوائنٹ پہ یہ پھڈے ہی ڈالتے رہے اللہ سے. یہ بے فائب کرتے رہے. یہ بہت بدبخت ڈھیٹ قوم ہے. ان کو مار پڑنی ہے، اور ابھی اللہ کی اسکیم کے تحت ان کو مار پڑنی ہے. وہ وقت کب ہے؟ ہمارے کہنے کے مطابق نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس ایمان ہے ہی نہیں. ایمان کی طاقت لڑتی ہے. اللہ کے دشمن سے ایمان کی طاقت ہوتی ہے. ان کے پاس ایمان کیا ہے؟ میں پڑھ رہا تھا ابھی
खबरें आप देख रहे हैं, 500 अरब डॉलर की इन स्टेट्स के साथ, ये अरब दुनिया के साथ 500 अरब डॉलर का इसराइल काम करता है, बिजनेस करता है। हाँ जी। वो जो मेन प्रोडक्ट है वो कहाँ से आती हैं? वो इसराइल मेड है। पता है आपको उस बात का? हाँ जी। 500 अरब डॉलर। ये तो मजे से हैं। ये जितना दवाई आप जाते हैं उतने उसने स्टोर में वो जितना माल लगाया है, मैक्सिमम माल इसराइल से आता है मेरे भाई। असला लेते हैं। असला ज़्यादा वहाँ से लेते हैं अरबों डॉलर का। ये तो बदमाश हैं, इनके पास ईमान नहीं है, डरे बैठे हैं किसी का नाम ना आ जाए, मैं ना पहल कर लूँ, मैं पहल कर लूँ, मेरा नाम ना आ जाए, अमरीका मुझे तबाह बर्बाद कर देगा। ये डरे बैठे हैं, इन्हें क्या लड़ना है ना, उनके मुफादात हैं। हम तो बैठे ना या सारे मुस्लिम पर मरने हैं, उनके जूं ही नहीं देंगे। सादी कम पैसे वाला है, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਡੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। उनके पास टेरिटरी, इस्तेमाल कर लो। सऊदी के पास कम पैसा, जियो के पास कम पैसा, पैसे की तो मसला ही ईमान नहीं है। ईमान कहाँ से लाए? वो तो ईमान वाले थे, मदीना वाले, उनके हैबत से दौड़ के थे यहूद। एक मैं आपको इनकी एक जुर्म बता रहा हूँ, कुरान अब बताएगा आपको। ये आज की बात नहीं है, जुल्म सितम करना इनकी सरिश्ते में शामिल है। ये आज में इसकी है, इसकी 84 16 मरतबा 16 मरतबा ये है यहूद। एक एक बात नहीं, बड़ी बातें, ये सारा ट्रैक चलता है। ये तो किसी वक्त इसको शुरू से मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा, आपके सामने चीज़ें हैं। 84 में नंबर देखें, 84 आयत नंबर। आपको इनको कुरान ये अल हदीस आपको बताती है। देख के मेरी बात सुन, मैंने पिछली दफ़ा एक आयत पेश की थी। जब अल्लाह ने कहा ला तत्तखिज़ुल यहूदा व नसारा औलिया, क्यों बनाते हो दोस्तों यहूद और नसारा को? इनको पता नहीं है, जहाँ अमेरिका बैठे हैं जाके डैन बना के मुराद ले के हमारे उलामा यहाँ से गए हैं, बस भी बड़े बड़े उलामा, वो नहीं बताते लोगों का ये आए, बस जफा डाल के बैठे हुए हैं बड़े बड़े नामों वाले चंदे लेने, और वो नहीं बता सकते इनको तुम क्या क्या करने गया अमेरिका है। जब अल्लाह ने मना किया है इनके साथ दोस्ती नहीं करनी, तुम क्या लेने गए हो? बड़े बड़े नामी गरामी फतेह अब्बास वहाँ बैठे हो, कनाडा तो इनका घर है, वहाँ बैठे हुए हजरत साहब चंदे ले रहे हैं उनसे। किसने अभी तक किसी का बयान ही नहीं आया, कुरान की रोशनी बयान ही आया। ये मैं आपको ही दफे दी थी, ये 5:51 देखें, ला तत्तखिज़ुल यहूदा नहीं, हाँ ये है सफ़ा नंबर, मैंने पिछले भी दफ़ा बयान किया था, आप दोबारा रीडिंग कर लें। ये 142 सफ़ा है, इनको हाईलाइट करो। आप माशाल्लाह समझदार लोग हैं, इनको बयान तो करें। क्यों कर रखा है आप घर में इन आयात को? इनके करतूत को सामने लाएं। ये अल्लाह लाया है, इनको अल्लाह ने बड़ा निचोड़ निकाल के ये बात की है कुरान ने, अल हदीस में। ये आपको सिर्फ अल हदीस में मिलेगी आयत, और कहाँ से नहीं मिलेगी आयत। बड़े अरबों से बड़े बड़े कारी, बड़े बड़े आलम यहाँ वहाँ बैठे हैं, वही आके वहाँ पाकिस्तान से भी गए हों, बड़े नामी गरमी उलमा, वहाँ जाके उनको मरातब मिलती हैं और यूट्यूब पर चढ़ाते हैं अब मुख्तलिफ किस्म की नज़रियात। ये उलमा है,
क्लियर लिखा हुआ है। मोमिन यहाँ ये देखें कैसी आयत 51 1443 साल हो गए, 45 साल। हाँ 45 साल देखें जरा। क्लियर मेंशन। और ईमान वाले से कहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, इस अल हदीस को छोड़ा हुआ है, अहसन अल हदीस को। अहसन अल हदीस क्या बयान कर रही है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ला तत्तखिज़ु यहूद व नसारा औलिया। ये है सोचे मोती, जी हाँ। ये कुरान के अल्फाज सोचे मोती हैं। ये है अल हदीस। हदीस और हदीस का मीनिंग में तो मुनकर हदीस है, मुनकर रिसालत। तुम इसको मानते हो? असल हदीस को इसके मुताबिक बात करो। जब अल्लाह ने फतवा दे रखा है, कानून दिया है, जी हाँ। गाइडेंस दी है कि इनको नात बनाना अपने सरपरस्त। ये पाकिस्तान का सरपरस्त एक काबे ने अमेरिका बन गया था, पता है? जब हमारे प्राइम मिनिस्टर था लियाकत अली खान नाम है को, जहाज पकड़ा तो चले गए अमेरिका यात्रा करने। उस वक्त से हमारे बेड़ियाँ पड़ी हुई हैं अमेरिका की, 40 पता 48 में या साने थे या 50 में। जब वो बने रहे, पहली काल आई थी ना, और उधर चले गए। उस वक्त से हमारे पाँव में बेड़ियाँ हैं। नसारा के पास से लगे थे। नसारा यहूद का गठजोड़ है, वो टूट नहीं सकते हाथ पे। हालांकि अल्लाह ने इल्म दिया है, जो वहाँ बैठे हैं बड़े नामों वाले उलमा कहलाते हैं, वो बताएं उनको नसारा के को तो शर्म करो। तो हमारे बड़े तो हमारे नबी से कुरान से सुन के रो पड़े थे, ज़्यादा को चारा उनकी हिचकियाँ पाई गई थी। सारा आपके बड़े तो थे, आप क्यों गठर कर रहे उनके साथ, यहूदियों के साथ? तुम्हारा तो हमारे साथ कुर्बत होनी चाहिए। तुम्हारे बड़े ईमान लाए थे हमारे रसूल के ऊपर। बताएं इनको आयत, इनको पता ही नहीं आया क्या कहती हैं। ज़्यादा कुतार रोए थे इनके बड़े नसारा के बड़े बड़े उलमा मुबल्लिगीन आए थे आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और उनकी हिचकी बढ़ गई थी कुरान सुन के। ये क्यों नहीं उन सारा को वो बता दे निकाल के ये मुकामत कि यार आप क्या कर रहे हो? तो यहूद के साथ तुम्हारा क्या ताल्लुक है? अगर कुछ थोड़ी मुसीबत बनती है, अल्लाह ताला फरमाते हैं सारे साई एक जैसे नहीं हैं, और हम अच्छे भी हैं। रातों उठ कर मेरी इबादत करते आयातुल्लाह के, देखते हैं उनको नजर में लाते। तो बताएं उनको, ये बताने की तकलीफ में क्या है उसको समझाएं। और बाइडन साहब तुम हमारे खिलाफ क्यों कर रहे हो कार्रवाइयाँ मुसलमानों के खिलाफ? तुम्हें यहूदी पीटते रहे और तुम भी पीटते रहो। आप हमारे साथ तो हमारा थोड़ी सी जरूरत हो सकती, तो हमारे साथ तो हो सकती। अल्लाह ने कहा फरमाया ये नसारा के साथ थोड़ी सी आप कुर्बत ज़्यादा हो सकती नस्बत यहूद के। यहूद बड़ा खतरनाक जरसूमा है, ये किसी का भी नहीं बनता। और ये यहूद के हैं, ये मौजूद हैं सूद कारोबार के, इसलिए इनसे अल्लाह की दुश्मनी चल रही है। अल्लाह के दुश्मन दार क्यों? अल्लाह ने रिबा को हराम करा दिया है, सूद को। इनकी किताबें भी नहीं बदल जाए और कुरान में ये इसलिए रसूलों के खिलाफ इसलिए थे कि इनके ऊपर चेक मीटर लगाते थे, वे सूद नहीं खाना। ये सूद के बगैर रह नहीं सकते यहूद। और अमेरिका में कोई यही चार्ट लगाई है, यहूदी हैं उनका नुमाइंदा है। इसलिए ये आलमी साजिश है जो हो रही है वहाँ से, मामूली बात नहीं है। हमें कब सोचा नहीं है, क्योंकि हमारे पास कुरान नहीं है। कुरान के बाद कोई फतूहत नहीं हो सकती, जितना मर्जी असला इकट्ठा करें। ये हमारा
एटमी पावर है। क्या इसका एटमी पावर होने का फायदा है? जब सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाएगा फिर होश में आएंगे। जब उन्हें आके सब कुछ वैसे ही कैफियत कर ली है तो फिर उस सब कुछ गवा के होश में है तो क्या होगा? उस वक्त क्या फायदा? अब नहीं बोल रहे, इनको अंदर से ये मरे हुए हैं, पेशे लगी है। अगर अमेरिका के खिलाफ खुल के बात कर दी वहाँ हम लगेगा तो आएगा, वैसे ही आ जाएगा। उसको क्या देर है आने में भाई यहाँ यहाँ पे तक। कौन सी कमी है? क्योंकि आया हुआ है। इसलिए ये कुरान को समझे भाई, कुरान समझे। कुरान मना किया कि था कुरान में, ला तख्तखिजुल यहूदा व नसारा औलिया। सारा पे थोड़ी सी रोशनी और डालते हैं। सारा को थोड़ा सा और एलाबोरेट कर। नसारा जो है ईसाइयों को कहते हैं, ईसाई ईसाई क्रिश्चियन जो मसीह रसूल के मानने वाले हैं उनको नसारा कहते हैं। इनको बताया जाए, ये उलमा या बैठे हैं कि यहूदी कहते हैं हमने हमारे रसूल को फांसी दी थी, अल्लाह। सलीब किया था, तो उनके साथ जाके उनकी पैरवी करते हो। यहाँ तक नहीं कहते थे जलील मौत मरा है, ये कहते थे। अल्लाह ताला माफ़ है, जिसको सलीब होती थी, सलीब उसका कहते थे ये लांती की मौत है, यहाँ तक उनका था। तो वो इस ये बताए ना, उलमा क्यों नहीं बताते? इनके पास आसान हदीस नहीं है, जी जी। कुरान नहीं है, कैसे बताएं? उनसे चंदे लेके बैठे हुए हैं। बड़े बड़े नामों में मैं नामों में ही नहीं जाता, आपको पता ही है, वही आप पता कर लें। उधर बैठे हैं अमेरिका की गोद में, एक वह पैर है कनाडा के गोद में बैठा है, यहीं से गया हमारा ये एम्बलक से। जी जी। क्या करा कनाडा में बैठ को तुम? इत्तेफाक मजहब का रसूल के साथ बहुत इश्क आपने किया हुआ है, बड़ी ख्वाबें देखी थी, तो तुम क्या कर रहे कनाडा में बैठ कर कौन से इस्लाम को फैला रहे हो? इनको कुरान के लिए एक्सपोज करने की जरूरत है। ये जो है चंदों पे पले मले इन्हीं यहूद और नसारा के, और कुरान कहते हैं वादुम आलिया बाद, ये नसारा और यहूद एक दूसरे के दोस्त हैं, तुम इसके साथ क्या दोस्ती कर सकते हैं? और फरमाया वमन यतवल्लाहुम मिनकुम फइन्नहुम मिनहु। अल्लाह ताला के फरमान देखें क्लियर नहीं। कि जो इनसे दोस्ती करेगा वो इन्हीं में से शुमार हो गए। यस। और जाओ उनके जाके एंजॉय करो अमेरिका कर कनाडा को, वो नहीं में से मारा गया तुम्हारा जो इनसे दोस्ती करेगा। कभी भी उनके निज़ाम के मुतालिक खिलाफ बात नहीं कर सकते। मैं आपको दावे से कहता हूँ, जी जी। इस्लाम के निज़ाम की कभी बात नहीं करेंगे उस मुल्क में बैठ के। इस्लाम ये है, उनका जो निज़ाम है वो सूद पे मबनी है, जबकि इस्लाम का निज़ाम जो है इंफाक पे मबनी है। इंफाक, हमारा निज़ाम इंफाक है, जी जी। जो हर चीज़ अल्लाह के सामने सरेंडर करते हैं। इंफाक, जान हो माल हो, उसके बदले में जन्नत मिली। तो अल्लाह फरमाया वमन यतवल्लाहुम मिनहुम, इस बात से तो जो तवल्ला करेगा, मुंह मोड़ेगा। यानी जो बात अल्लाह फरमा रहे हैं यहूद और नसारा को दोस्त ना बनाओ, अगर इस बात से हम बैकआउट करेंगे अल्लाह से, इस बात से अल हदीस से फरमाया फइन्नहुम मिनहुम, होना चाहिए। तो उसी होना जो हो जाएगा। ये कैसी डायरेक्शन है, कभी गौर तो करें। फरमाया वल्लाह इन्नल्लाह ला यहदिल कौम ज़ालिमीन, हम जालिम कौम हैं
इन शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम। कितने लाख आप भी बता रहे थे यहाँ पाकिस्तान में 10 लाख पीर हैं, 2 लाख मज़ार हैं। सुनने हाँ जी, लाखों से मज़ार हैं पाकिस्तान के अंदर। शिरकत गढ़ है या पाकिस्तान? कहाँ मोमिन ये मार खाएंगे? अब अल्लाह का क्या मसला है? सारे मर जाएं। सर खा रहे 75,000 अरब रुपए के कर्ज़े हैं। हाँ। 75,000 अरब। सूद उनका बेसिक है जी जी, सोर्स ऑफ इनकम, जबकि अल्लाह ने हमें पैरेलल दी था इंफाक के ज़रिए ज़कात होती है मुआशरे की। इंफाक है नहीं, कहाँ इंफाक? चंद मजहबी रसूमात बनाई हैं ये जी क्या कि छोटी ईद पे बकरी ईद और दिया दियो इना क्या को कहते हैं फितराना ना काल दो ऐसे खराब कर दो ये कर दो ये क्या ये फिर रसूमात हैं। यही मजहबी रसूमात इन्फाक वो तो इकट्ठा होने नहीं देता पैसा। इन्फाक में आपको इकट्ठा ही होता ही नहीं पैसा, हर किसी के वेलफेयर के हम काम आते हैं और अल्लाह ताला बढ़ा चढ़ा के वापस कर देते हैं। कर्ज़ हसना है अल्लाह कहता है कर्ज़ हसना दो, अल्लाह क्या कहते तो कर्ज़ हसना देने की वेलफेयर तो ह्यूमैनिटी वो आए थे बीते महीने की वो देख लें हमने शुरू करनी थी तो बात करके ख़त्म करते हैं। 16 नंबर फलसफे असल में ये चैप्टर इतना लंबा है कि 1 घंटे के अंदर नहीं पूरा सकता। तो सुहेल बकरा की 84 84 16 सफ़ा 2 अल बकरा सूरत है 2 नंबर, इसके आयत नंबर 84 देखेगा कितनी ज़बरदस्त आए थे। जी अल्लाह ताला करे हमें आयतें की समझ आए। हम तो भूले हुए हैं, कुरान को छोड़ के सवाए जलालत और कुछ नहीं मिलता। कुरान को छोड़कर बंदा इंडिविजुअल है या इताई हो बाकी सब जलालत। जलालत ही जलालत मिलेगी, क्योंकि इसके साथ है शर्फ व मस्जिद की जामिन ये कुरान। अभी आप कहते हो आके अगर आप चाहते हो ऑनर मिले, ऑनर इसके साथ मिले, मोमिन की शान इसके साथ है, इस किताब के साथ। ये देखें फरमाया कि वाइज अखाजना मीसाक़कुम, यहूदियों से बात हो रही है जब तुमसे अल्लाह ने मीसाक लिया था, कमिटमेंट ली थी, ऐसे लिया था कि तुम ये काम नहीं करोगे। ला तस्फिकूना दिमाअकुम, तुम खून नहीं बहाओगे, खून रेजियाँ नहीं करोगे। वला तुखरिजूना अनफुसकुम मिन दियारिकुम, नई देश निकाला दोगे तुम अपने भाई बंधुओं को, अपने हमसाए को, रिश्तेदारों को, सब में आ जाते हैं। और सुम्मा अकरर तुमने इकरार किया था, कमिटमेंट की अल्लाह के साथ इस यहूदी कौम ने। वह अंतुम तशहदून, और जो गवाह बने थे तुम उस एग्रीमेंट के ऊपर साइन भी किए थे। तुमने क्या कहते हो यहूदियों ज्यूस, मैंने बताया इन्हीं की अल्लाह के साथ दुश्मनी ये है, अल्लाह रिबा को ख़त्म करता है, सूद को नहीं चलने देता। ये सूद के बगैर रह ही सकते। सारी दुनिया में चलते हैं। आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदीना हिजरत का जाना, उसमें एक बड़ी हिकमत ये भी थी, बहुत बड़ी हिकमत थी। ये हिकमत इन्ना थी वास्ते जाए बगैर उनका ख़ात्मा नहीं होना था। मैं आपको बताऊं, यह बात किसी ने आपको बताई होगी, खाली असल ऐसी ये बात किसी ने, ये मिलना दुनिया होती हैं बातें, अल्लाह ताला देता है इल्म फहम। यह तारीख में भी नहीं मिलेगी ये बात जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये मेरा अल्लाह ताला दिमाग में डाली है। यहूद का डैन था मदीना, सूद खोरा का,
मरकज से। वो मदीने वाले को ऐड करते रहे और मक्का वाले की ऐड भी वो करते थे जालिम वहाँ बैठे अल्लाह मक्का के जो मुशरिकीन बड़े बड़े सदात हैं उनको भी वही ऐड करते थे पैसा उनके पास बहुत। तो इसमें हिकमत ये भी थी अल्लाह ने रखी कि वहाँ जाना ज़रूरी था जमात मोमिनीन का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरबराही में वहाँ जाके एक कला का करना मकसूद था। और वैसे ही हुआ जब वो वहाँ से गए सारे मुल्क में हज़ारों लाखों मीलों पे उनका कब्जा आ गया। वे ये बड़ा फसादी लोग हैं। ये देखा आगे क्या कह रहे हैं अगली आज मैं इसलिए कह रहा हूँ आपने कई दफ़ा सूरह अल बकरा पढ़ी हुई कुरान बड़े ख़त्म किए हो गया आप लोग किसी ने नहीं बताया ओए साहब बकरा में लिखा क्या है ये तो हिस्टोरिकल वाक़यात ऐसे नहीं है फैक्ट्स हैं ऑथेंटिक है फैक्ट्स हैं इनको तो सामने रखना था अल्लाह ताला जब करार तैयार हुए कमिटमेंट की वादों के पासदारी बहुत बड़ी चीज़ है इन तो नहीं यहाँ भी दुनिया में आप वादे से मुकद्दर हैं ये जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती हैं उनके साथ गड़बड़ करके दिखाएं वो खींच रहे थे वहाँ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से कि जी हमारे साथ जाती हुई है इस मतलब ने ये किया था हमारे साथ तो उसकी वायलेशन की जुर्माने होती हैं ये जो बोरिस्तान रेकोडेक है और कितने अरब डॉलर जुर्माना है पाकिस्तान तो वादे खराब अल्लाह से करेंगे आप लोगों से वफा करने पड़ते हैं वादों की अल्लाह ताला कह पूछ होनी है। तो ये कह रहा था कि तुमने किया क्या यहूदियों सुम्मा अंतुम हा ओलाई तक़तुलूना अनफुसकुम तुम्हें तो कत्ल गलत कर बाजार को करम कर दी तुमने कत्ल गलत को शुरू कर दी जबकि तुमने हमारे साथ ये वादा की था कमिटमेंट की थी तुमने किया क्या अपने वादे खराब चले वतख़्तुख़्रिजूना फ़रीक़म मिनकुम मिन दियारिहिम और तुमने देश निकाला दी है अपने ही लोगों को जैसे अब ये क्या कर रहे हैं देश से निकाला कर रहे हैं मुसलमानों को क्या कर रहे हैं कि जगह मिल जाए हमारा कब्जा यही है मतलब विश्व का मतलब मर जाए कोई परवाह नहीं ये इनकी शुरू से ही जहनीत बयान किया है। तो क्यों नहीं इससे सबक पकड़ा है उम्मत मुसलमा बनी फिरती है 2 अरब मुसलमान है वो ऐसी फेल हो गई बिगी बेली फेल हो गए बिगी बेली बने ये तो हमारा आइटम का काम आएगा जब आराम से समेट के ले जाएंगे सब जैसे लीबिया से ले गए जैसे इराक को तबाह किया तुम्हें भी खा देंगे एटमी पैगाम एटमी हो रहा हूँ इराक को किया वहाँ से सनदे लेके आते हैं हमारे जनरल पता है आपको जिसको सर्टिफाई मिलता है वो आके जनरल बनते हैं अमेरिका के बगैर जनरल नहीं बन सकता जब तक उसकी रिकमेंडेशन ना हो ये आपको पता ही होगा मुझसे ज़्यादा जानते हैं जर्नलिस्ट का सर्टिफिकेट वो देते हैं इसको बनाओ वहाँ से इसकी वेरिफिकेशन होती है तो कैसे लड़ेंगे उनके खिलाफ। तो अल्लाह फरमा रहे हैं बहुत तो खुजून फ़रीक़म मिन दियारिहिम तज़ाहरुना अलैहिम मुल इस्म वल उदवान ये है मालिक का फरमान। इससे जाहिर होता है तुम दुश्मन अल्लाह के अदू इस्म करते हो तुम्हारी तरक्की रुक जाती है रुक जाएगी इससे तुज़ाहरुना अलैहिम बिल इस्मि वल उदवान। तो कहते क्या थे यहूदी असगर साहब इनका ज़रा देखें जब निकाल दिया घरों से बूढ़े आते हैं मर्द जो बच्चे वो किसी ने उनको अपने ले आना हसार में रास्ते में पकड़े गए तो अब ये इन्होंने खरात का एक ज़रिया ये भी बनाया होता जाना उनसे कहा यार थोड़ी सी खरात दे दो ये आज़ाद को
انہوں نے اللہ کے خوش کرنے کے لیے طریقہ اپنایا ہوا تھا کہ یار خیرات کر کے اپنے ماں باپ میں واپس لے آنا. اللہ تعالیٰ کہنا تمہیں تو کہا تھا نکالنا ہی نہیں ہے. یہ آگے ہے کہتا ہے آبائی آتوکم سارا تفادوہم وہو محرم علیکم اخراجہم. تمہیں تو کہ نکالنا ہی نہیں ان کو, یہ حرام تھا تمہارے اوپر نکالنا. یہ تو کیا طریقہ, جب پکڑے گئے تو خیرات کے طور پر پیسے دی گھر دے. یہ کیا ہم نے تو حرام کرا دیا اور تو فدیہ جا کے ان کا داد کرا کے لے دو. یہ خیرات کا طریقہ ہے. فرمایا وقت تکفرون میں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. جو اپنے پسند کی چیزیں ہوتے ہیں وہ لے لیتے ہیں قرآن سے یا حدیث سے, جو نہیں پسند اس کو چھوڑ دو. یہودی بھی یہی کرتے, پسند کی چیزیں رکھ لی جسے جو ان کے مطلب کی, باقی چھوڑ دی. ہم بھی یہی کر رہے ہیں. پسند کی جو ہے نا آیت یا حدیث اس کو بولی کو زیادہ چندر میں بھول جاتا ہے. پسند کی بات کرتے ہیں, میاں صاحب کے حق میں دعا کرتے ہیں, پسند کی باتیں بتائیں, حضور نے یہ فرمایا یہ فرمایا, اس کے چندہ دیے. جیسے سارے ایسے کرتے ہیں, جتنے بڑے بڑے مدارس یہ بیٹھے ہیں سب کا طریقہ کار یہ ہے. بارہ یہ لمبی آیتیں ہیں انشاءاللہ آگے پھر یہ تو نہ ختم ہونے والی چیزیں ہیں, ہم ہی ختم ہو جائیں گے. یہ نہیں یا بتانے میں مقصد یہ ہے ان آیات کا کہ آپ کے ذہن میں یہ سمائیں آسان الحدیث کی باتیں, یہ کوئی متاثر یہ بتائیں کہ ان کا مفاد بس ہے. یہودی کا ساتھ عیسائیوں کا ساتھ مفاد بس ہے. وہ تو ایک کمیٹی دینے دیں گے, چلو نکلا بات سارے ملک سے, وہ چندے بند ہو جاتے. اس لیے جا کے چھی مار کے بیٹھے ہیں, پھر سانس کو کٹے نہ. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وبرحمتک یا ارحم الراحمین. اتنا ہی کر سکوں تو بھی تو ٹھیک نہیں ذرا, لیکن اللہ کا شکر ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آمین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا فتنة للذين ظلموا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ماشاء اللہ.